A rhinoestrus is known as a equine nasal fly. Another fly is Gastrophilus, which is also known as stomach fly or horsefly. It causes gastric masses. इनका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि एग हैचेस ओनली व्हेन एनिमल लिक्स और रब्स. एनिमल ने प्रेजेंट होंगे लेकिन जब उसको एनिमल लिक करेगा या रब करेगा तभी वो एग हैच होंगे. इसके जो एग्स लेड होते हैं वो फेटलॉक रीजन में. एग्स लेड इन फेटलॉक रीजन. सॉरी, स्कैपुला टू फेटलॉक रीजन मतलब कि फोर लिम्ब में. इसका जो एक कैरेक्टरिस्टिक क्लिनिकल साइंस है कि वो स्टमक में, इन केस ऑफ हॉर्सेस स्टमक, funnel shaped funnel shaped ulcers are present. Another fly is hypoderma, which is also known as which is also known as warble fly, also known as heel fly. इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो पिछले बार भी एक क्वेश्चन आया था इससे कि दे ले 6 eggs per hair. 6 eggs per hair. It is also known as ox warble. And hypoderma diana is known as a deer warble. Deer warble. इससे जो कंडीशन कॉज होती है दैट इज लिग्ड बीफ. लिग्ड बीफ which is also known as butcher's jelly. और इसका जो एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि दैट अडल्ट हैव नॉन फंक्शनल माउथ पार्ट and larva have functional mouth part. Larva have functional mouth part in hypoderma, and this is also true for Estrus ovis. जनरली हाइपोडर्मा जो है ना वो 6 eggs पर हेयर ले करता है, लेकिन इसमें एक चीज है हाइपोडर्मा बोविस. नहीं, ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो ये क्वेश्चन पूछेगा था. हाइपोडर्मा बोविस ले एग सिंगली ऑन हेयर्स, mainly of leg. And hypoderma lineatum lay up to 14 eggs on single hair. अब हाइपोडर्मा स्किन में है, ज्यादातर इसके लीजन जो स्किन में है, दैट्स व्हाई इट कॉजेस क्यूटेनियस
Myiasis. Another fly is Hippobosca. Hippobosca is also known as forest fly. In this, yellow spots on thorax and abdomen are present. On thorax and abdomen are present. They have a strong claw. Another fly is, sorry, another fly is Melophagus. Melophagus. Melophagus ovinus, which is also known as a fly tick or fly lice. It is also known as a sheep cadfly. इसमें क्या है? Melophagus do not have wings. It causes discoloration of wool. ये Melophagus नाम सुन के लगता है कि ये tick होगा या तो lice होगा. नहीं, ये Melophagus ovinus is a fly. It does not have wings. Another fly is Pseudolynchia, which is also known as a pigeon or bird fly. दो मिनट रुकना तुम लोग, मैं आ रहा हूँ 2 मिनट से.
और यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी फ्लाई कवर हो गई हैं। ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं इनको डीप में, क्योंकि इनसे क्वेश्चन जो है ना ओटी टाइप ही, ओटी तो खैर पूरा पेपर ही रहता है, पर जो क्वेश्चन है ना वो सीधे सीधे पूछते हैं। तो अगर ओटी की बुक भी लगाना तो केवल क्वेश्चन क्वेश्चन लगाना है, इसका अगर कोई थ्योरी पार्ट भी नहीं पढ़ के जाएगा ना उसके भी क्वेश्चन सही हो जाएंगे, अगर वो वन वर्ड टाइप भी पढ़ के जाएगा तो। अब नेक्स्ट वन इज बग्स। Bugs have string glands. Their wings are like scissors. So there are two type of bugs. First is Cymex, which is known as bed bug, and second is Rudowit type of bug, which is also known as a kissing bug. It causes Chagas disease. Another one is beetles. So beetles, there is anterior, the wings are anterior wings are modified and form elytra. In this, vesicating glands are present. These vesicating glands produce cathedrin. Another arthropod is flea. Flea comes under Siphonoptera. Male flea has claspers. Flea do not have wings. Their legs are mainly of jumping type. In flea, first one is Tinatophilidis. See, Tinato, spelling check कर लेना, Philidis canis. It is a dog flea. इसका जो जीनल और तो तीनों में अपन डिफरेंस देख लेते हैं, ये भी ओटी में पूछते हैं कभी कभी कभी. Second one is C. felis and third one is Genetocephalidis orientalis. It is present in cat and it is present in man. तो उसमें अपन जीनल एंड प्रोनोटल कॉम्ब. जीनियल और प्रोनोटल कॉम्ब क्या होता है? सपोज इफ फ्ली है तो जो एंटीरियर में प्रेजेंट होते हैं ना, यहाँ पे इनको बोलते हैं अपन जीनल कॉम्ब, और इनको अपन बोलते हैं प्रोनोटल कॉम्ब. तो इन Tinatophilidis canis, genal and pronotal comb are absent, and in case of felis, sorry, genal and pronotal comb are present. और इन तीनों में ही जीनल और प्रोनोटल कॉम्ब प्रेजेंट होते हैं. बस में डिफरेंस ये है कि फेलिस के केस में जो जीनल कॉम्ब होते हैं ना वो दोनों ही इक्वल लेंथ के होते हैं. इन केस ऑफ
Tenetophilidis fellis, both spine and genal comb are of equal length. Another flea is Xenopsila chiopis. It is also known as a oriental rat flea और ब्लैक रेड फ्ली. इसमें जीनल कॉम्ब और प्रोनोटल कॉम्ब इसमें दोनों एब्सेंट होता है. Another one is Pulex irritans. It is present in man. इसमें भी जीनल कॉम्ब और प्रोनोटल कॉम्ब एब्सेंट होता है. फ्ली के कंट्रोल के लिए हम फ्ली कॉलर यूज करते हैं. तो फ्ली कॉलर में क्या रहता है? डाइक्लोरवॉस, मिथोक्यून, एंड लिफेन्यूरॉन. और फ्ली के सलाइवा में हेप्टेन्स प्रेजेंट रहते हैं. जो कि स्किन में बाइंड्स विद स्किन कोलेजन. फिर आते हैं लाइस. तो लाइस में दो हैं. फर्स्ट वन इज मेलोफेगा, which is also known as a biting lice, and second is siphon coletta, which is known as a sucking lice. जो बाइटिंग लाइस हैं वो केवल मैमल्स और बर्ड्स को अफेक्ट करते हैं. मैमल्स एंड बर्ड्स. एंड सकिंग लाइस ओनली मैमल्स. जो बाइटिंग लाइस के क्लॉ होते हैं, क्लॉ इन केस ऑफ बाइटिंग लाइस, अगर वो बर्ड का लाइस है तो उसमें क्लॉ जो होंगे दो होंगे, और वो मैमल का है अगर तो एक क्लॉ होगा. और इस केस में मैमल के केस में दो क्लॉ होते हैं सकिंग लाइफ में. फिर क्लॉ के बाद एंटीना. एंटीना अगर बर्ड का लाइस है तो उसमें 5 सेगमेंट होंगे एंटीना में, और अगर मैमल का है तो उसमें 3 सेगमेंट होंगे. और इसमें मैमल के केस में एंटीना में 5 सेगमेंट होते हैं इन केस ऑफ सकिंग लाइस. और सकिंग लाइस में टिबियल प्लेट्स आर प्रेजेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इन सकिंग लाइस टिबियल प्लेट्स आर प्रेजेंट, which are also known as tibial pads or tibial thumb. They are also known as pterygal plates. और इस केस में बाइटिंग लाइस के केस में दे आर एब्सेंट.
अब सकिंग लाइस में कौन कौन सी स्पीसीज है? सकिंग और साइफन कुलेटा। इसमें जो सबसे पहली है दैट इज हिमेटोपाइनस यूरिस्टेनस। यूरिस्टर्नस विच इज नोन एज अ शॉर्ट। इसके एग्जाम्पल याद रखने, ये क्वेश्चन में पिछली बार आया था कि इनमें से ऑप्शन दिए थे, 4 ऑप्शन में से सेलेक्ट करना था। नहीं, ऑप्शन नहीं, 6-7 ऑप्शन दिए थे, उसमें से सेलेक्ट करना था कि कौन कौन से इसमें से बाइटिंग लाइस हैं और कौन कौन से सकिंग लाइस। दो में से कोई एक चीज पूछा था शायद, कौन कौन से इनमें से सकिंग लाइस है। तो हिमेटोपाइनस यूरिस्टेनस इज नोन एज अ शॉर्ट नोज लाउस ऑफ कैटल। Second one is Hematopinus asinus. It is present in horse. Third one is Hematopinus tuberculatus. It is present in buffalo. Fourth one is Hematopinus suis. It is present in pig. तो सकिंग लाइस में पहला है Hematopinus and second one is Lignognathes. In this, first species is Elpidalis. It is a foot louse of sheep. इन सारे के कॉमन नेम याद होनी चाहिए। फूट लाउस ऑफ सीप। सेकंड वन इज ओवेलिस। इट इज अ फेस और बॉडी और ब्लू लाउस ऑफ शीप। थर्ड वन इज सिटोसिस। इट इज अ सकिंग लाउस ऑफ डॉग। फोर्थ वन इज लिग्नोग्नाथस विटुलाई। इट इज अ लॉन्ग नोज लाउस ऑफ कैटल। लॉन्ग नोज लाउस ऑफ कैटल। इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लू लाउस। एंड जो eggs of lice are known as nits. तो सकिंग लाइस में केवल दो ही हैं, हिमेटोपाइनस और लिग्नोग्नाथस। उसके बाद बाइटिंग लाइस। बाइटिंग लाइस और मेलोफेगा। इसमें आते हैं बर्ड्स और मैमल्स के लाइस। इसमें लाइस में याद रखना है कि जो सकिंग लाइस है वो केवल मैमल्स में प्रेजेंट होते हैं एंड बाइटिंग लाइस मैमल्स और बर्ड्स दोनों में। और सकिंग लाइस के एग्जाम्पल में हिमेटोपाइनस और लिग्नोग्नाथस हैं। और बाइटिंग लाइस के एग्जाम्पल में मैं बता रहा हूँ जो वो बर्ड्स, तो बर्ड्स के केस में है मीनोपॉन गैलिनी। स्पेलिंग चेक कर लेना एक बार कि ओटी लगाना है, मीनोपॉन मीनोपॉज कुछ मिले वो लगा देना। मीनोपॉन गैलिनी इट इज ऑल्सो नोन एज अ शाफ्ट लाउस।
soft louse of poultry. Second one is Mecanthus straminius. Mecanthus straminius. It is known as a body louse of poultry. It is also known as a yellow body louse of poultry. And third one is Lupuris canopus, which is known as a wing louse of poultry. Fourth one is Lepurus. It is Lepunis and it is Lepurus. Lepurus heterographus. It is known as a head louse of poultry. There is one Cuclotogaster. It is also known as the head louse of poultry. उसके बाद mammals के केस में there is Daminia bovis. It is present in bovine. It is also known as a red louse of cattle. फिर इसमें Daminia ovis है, Daminia caprai, ओवाई एक्सेट्रा. और इसमें है एक ट्राइकोडक्टस कैनिस. इट इज प्रेजेंट इन डॉग. उसके बाद है पेंटोस्टोमेटिडा. पेंटोस्टोमेटिडे. इट इज नोन एज अ टंग वर्म. It is present in upper respiratory tract. This causes Helzoon syndrome. Its definitive host is dog and intermediate host are arthropods and acarines. ये टंग में मिलता है इसलिए इसको टंग वर्म नहीं बोलते. ये टंग में मिलता ही नहीं. इट इज प्रेजेंट इन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. दिस इज नोन एज टंग वर्म बिकॉज ऑफ शेप ऑफ टंग, नॉट ड्यू टू द लोकेशन. याद रखना, पेंटोस्टोमेटिडा जो है वो टंग में नहीं मिलता. इट इज फाउंड इन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड इट इज कॉल्ड एज टंग वर्म बिकॉज ऑफ shape, because it looks like a shape of tongue. उसके बाद है mites. टिक्स में सकिंग लाइस और बाइटिंग लाइस के एग्जांपल जरूर याद रखना. कॉमन नेम भी याद रखना, पर सकिंग बाइटिंग के एग्जांपल जरूर याद रखना. mites comes under a stigmata. In this, first one is sarcop. First one is Sarcoptes. Second one is Cinemedoptidae. Third is Sauroptes. Fourth one is Notoedrus.
तो इन सार्कोप्टिस, फर्स्ट वन इज सार्कोप्टिस स्केबियाई, which causes scabies or dairy itch. सार्कोप्टिस इज अ बरोइंग माइट। इसमें ये इसके भी याद रखना कि कौन सा बरोइंग माइट है और कौन सा नॉन बरोइंग माइट है। तो सार्कोप्टिस इज अ बरोइंग माइट। सार्कोप्टिस ओविस, सार्कोप्टिस ओविस causes sheep head mange. Sarcoptes is also known as a, generally overall it is known as a itch mite or burrowing mite. It has short legs which not protrude out from body. Its larva burrow to stratum corneum. Stratum corneum layer। और इसका एक बहुत ही पेक्यूलियर फीचर है वो है कि फीमेल में एक टनल बोरोइंग माइट है, जैसे पहले बताया। तो फीमेल में एक टनल्स एंड मेल डाइज आफ्टर कॉपुलेशन। Second one is notohedrous. In that there is notohedrous cati, which is present in cat. Second one is notohedrous muris. It is ear mange mite of rat. अब बरोइंग माइट जो भी हैं, जैसे सार्कोप्टिस है, उसके लिए जो अपना डायग्नोसिस के लिए यूज करते हैं तो वो दो नाम याद रखने। फर्स्ट वन इज रबिंग इंडेक्स एंड सेकंड वन इज बरो इंक इंडेक्स। नोटोइड्रस में एक उसका लीजन होता है, दैट इज थंब प्रिंट इम्प्रेशन इन थोरैक्स। तो सार्कोप्टिस भी बरोइंग माइट है, नोटोइड्रस भी बरोइंग माइट है और निमेटोकॉप्टिस भी बरोइंग माइट है। थर्ड वन इज निमेटोकॉप्टिस। In this first one is Nematocoptis gallini. इसको याद रखना है, इसका कॉमन नेम विच इज नोन एज अ डी प्लूमिंग इच माइट ऑफ पोल्ट्री। Second one is Nematocoptis mutans, which causes scaly legs, which causes scaly legs in fowl. अब ये सारे के सारे अभी तक जितने पता है ये बोरोइंग माइट थे, उनको याद रखना कि वो बोरोइंग माइट के एग्जांपल है। अब है नॉन बोरोइंग माइट्स। नॉन बोरोइंग माइट, तो नॉन बोरोइंग माइट्स में सोरोप्टिडे फैमिली आती है। सोरोप्टिडे, इनके कैरेक्टर्स क्या होते हैं कि दे हैव लॉन्ग लेग्स। उसमें क्या थे, शॉर्ट लेग्स थे, बॉडी के बाहर नहीं आ रहे थे, नॉट प्रोट्रूड आउट फ्रॉम द बॉडी। इसमें क्या है, लॉन्ग लेग्स प्रोट्रूड आउट फ्रॉम बॉडी। उसमें स्केल्स प्रेजेंट थे, इन दिस केस देयर इज नो स्केल्स एंड स्पाइन। सार्कोप्टिस में स्केल्स प्रेजेंट। सो सोरोप्टिडे में आते हैं सोरोप्टिस। ये बोरोइंग माइट के एग्जांपल याद रखना, सोरोप्टिस, कोरियोप्टिस एंड ओटोडक्टस। यही पूछा था पिछली बार कि बोरोइंग माइट के एग्जांपल कौन कौन से अलग करने थे, उसको
याद रखना पीसीओ नहीं होता है, सोरोप्टिस, कोरियोप्टिस, ऑटोडक्टस पीसीओ से। These are PCO are non-burrowing mite। तो सोरोप्टिस में से सोरोप्टिस ओविस कॉजेस शीप स्कैब। सोरोप्टिस कैनिकुलस कॉजेस ईयर कैंसर। कोरियोप्टिस में कोरियोप्टिस बोविस कॉजेस इची लेग इन कैटल नहीं हॉर्स। एंड इट ऑल्सो कॉजेस फुट मेंज सर ईयर एंड कैंसर कौन कॉज करता है? सोरोप्टिस कैनिकुलस। फिर इट Coreoptis bovis causes itchy leg in horse, which also causes foot mange and foot rot in horse. Then third one is Autoductus. In there is one species Autoductus cyanotis. It causes ear mange in dog and cat. फिर है मीजोस्टिग्मेटा। ये बोरोइंग नॉन बोरोइंग खत्म होगा, उनके एग्जाम्पल जरूर याद रखना। मीजोस्टिग्मेटा। फिर मीजोस्टिग्मेटा में आते हैं, they are known as gamma shed mites। इसमें आते हैं ऑर्निथोराइनस, स्पेलिंग देख लेना एक बार, ऑर्निथोराइनस बर्सा, which is a tropical foul mite। tropical foul mite। Second one is Dermanisus gallini। It is a red mite of poultry, red mite of fowl। Third one is Ornithorhynchus bakoti। It is a tropical rat mite। And fourth is Ornithorhynchus bursa। It is a tropical foul mite। Sorry, I have already discussed it। Ornithorhynchus bakoti is known as tropical rat mite। फिर आता है प्रोटोस्टिग्मेटा। इसमें आते हैं ट्रोम्बिकुला एंड सेकंड वन इज डेमोडेक्स। तो डेमोडेक्स क्या कॉज करता है सबको पता होगा, इट कॉजेस रेड मेंज एंड विच इज ऑल्सो नोन एज फॉलिकुलर मेंज। डेमोडेक्स का जो लार्वा होता है इट इज ऑफ सिगार शेप्ड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेमोडेक्स लार्वा इज सिगार शेप्ड। इट इज इट इज प्रेजेंट अंडर द स्किन। इसके जो लार्वा होते हैं, लार्वा हैज फोर पेयर्स ऑफ लेग्स। इंसेक्ट में कितने पेयर लेग होते हैं? इंसेक्ट्स में होते हैं 3 पेयर ऑफ लेग्स, लेकिन जो टिक और माइट्स में होते हैं ना, ये भी याद रखना, टिक और माइट्स में होते हैं 4 पेयर लेग्स और इंसेक्ट्स में होते हैं 3 पेयर लेग्स, 3 पेयर लेग्स एंड टिक एंड माइट्स में होते हैं 4 पेयर लेग्स। और फिर इसमें जो पहला था ट्रोम्बिकुला विच इज ऑल्सो नोन एज
सिगार और वेलवेट और हार्वेस्ट माइट। फिर इसमें जो स्पीसीज है वो ट्रोम्बिकुलस ऑटमनालिस विच कॉजेस हील बग ऑफ हॉर्स। दूसरी स्पीसीज जो है वो है ट्रोम्बिकुलस डेल्टीमेंसिस विच कॉजेस स्क्रब टाइफस। अभी डेमोडेकोसिस को भी अपन आगे भी डिस्कस करेंगे। तो डेमोडिकोसिस डेमोडिकोसिस के दो फॉर्म होते हैं, एक तो स्क्वेमस और दूसरा पस्चुलर। स्क्वेमस फॉर्म में मस्टी ऑर्डर प्रेजेंट होता है। देयर इज अ मस्टी ऑर्डर इन स्क्वेमस फॉर्म। कॉपर स्किन बिकम्स कॉपर रेड कलर। और पस्चुलर फॉर्म जो होता है वो मेनली हो जाता है वो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण स्क्वेमस फॉर्म ही पस्चुलर फॉर्म में डेवलप हो जाता है ड्यू टू सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन। डेमोडिकोसिस का जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लिनिकल साइन है वो है इसमें कि प्रोराइटिस जो है वो नहीं होती है। देयर इज नो प्रोराइटिस इन केस ऑफ डेमोडिकोसिस। और इसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड। मतलब डेक्सोना, ये सब डेक्सामीथाजोन, ये सब मिथाइल प्रेडनिसोलोन, ये सब नहीं देना है। और डेमोडिकोसिस इज रेयर इन शीप। और जो डेमोडेक्स की लोकेशन होती है, लोकेशन ऑफ डेमोडेक्स, इट इज हेयर फॉलिकल एंड सेबेशियस ग्लैंड्स। अब जो अपना लास्ट टॉपिक है आर्थ्रोपोड्स में वो है टिक्स। टिक्स comes under Exodida. Larva of ticks are known as seed tick. अब इसमें ओटी के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो सारे के सारे एग्जाम्पल टिक से कोई ना कोई ओटी जरूर आती है। तो जैसे सॉफ्ट टिक के जो एग्जाम्पल हैं उसमें आता है अर्गस, ऑर्निथोडोरस, एंड ऑटोबियस। हार्ड टिक में आते हैं, ये तीन ही आते हैं सॉफ्ट टिक में, तो तीन याद रख लो, बाकी जो बचे वो हैं सब हार्ड टिक। अर्गस, ऑर्निथोडोरस एंड ऑटोबियस। फिर हार्ड टिक में आते हैं हाइलोमा, हीमोफाइसिलिस, रिपिसिफेलस। रिपिसिफेलस ओल्ड नेम है, उसको अभी बूफिलस, मतलब रिपिसिफेलस और बूफिलस दोनों एक ही हैं। फिर डर्मा सेंटर, कई कई बुक में अलग अलग बोलते हैं पर रिपिसिफेलस और बूफिलस एक ही है। फिर है एक्सोडिस, तनुवास में शायद अलग अलग लिखा है, बाकी भाटिया में तो एक ही लिखा है। एम्ब्लायोमा, एम्बाइलोमा है, एम्बाइलोमा, इसको देख लेना। सॉफ्ट और हार्ड टिक एग्जाम्पल जरूर याद रखना। फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट एंड हार्ड टिक? सॉफ्ट टिक और हार्ड टिक। सॉफ्ट टिक आते हैं अर्गसिडे में और हार्ड टिक आते हैं एक्सोडिडे में। तो सॉफ्ट टिक में जो स्कूटम इज एब्सेंट एंड हार्ड टिक स्कूटम इज प्रेजेंट।
ये सबसे बड़ा पहला तो ये डिफरेंस है। और इसके जो सॉफ्ट टिक के जो माउथ पार्ट्स होते हैं, माउथ पार्ट्स आर नॉट विजिबल, और हार्ड टिक्स के माउथ पार्ट जो है वो विजिबल होते हैं। सॉफ्ट टिक में पैडी पल्प, जैसे पहले ही बताया सॉफ्ट है तो पैडी पल्प प्रेजेंट होगा, और इसमें हार्ड है तो नहीं होगा। और स्पाइरेकल इज प्रेजेंट बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ कॉक्से। स्पाइरेकल इज प्रेजेंट बिटवीन थर्ड एंड fourth coccyx, or in this case in Hartic behind fourth coccyx. और इसमें मेनली सॉफ्ट टिक्स में टू निम्फल स्टेजेस आर प्रेजेंट, और हार्ड टिक में मोस्टली वन निम्फल स्टेज इज प्रेजेंट। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है फेस्टून। तो फेस्टून्स आर एब्सेंट इन केस ऑफ फेस्टून्स आर प्रेजेंट। और सॉफ्ट टिक्स आर नाइट फीडर्स and hard tick are day feeders. फिर अब सॉफ्ट टिक्स में पहला जो आता है वो आता है अर्गस। सॉफ्ट टिक में आता है अर्गस, ऑर्निथोडोरस और ओटोबियस, जो पहले बता चुका मैं। सॉफ्ट टिक में अर्गस आता है, ओटोबियस एंड ऑर्निथोडोरस। तो इसमें जो अर्गस की पहली स्पीसीज है दैट इज अर्गस persicus, which is also known as a foul tick or blue bug. Autobius magini, which is a spinous ear tick, which is faddle shaped. Third one is Ornithodorus. तो Ornithodorus are the eyeless tampons of Africa. फिर उसके बाद आते हैं हार्ड टिक। सॉफ्ट टिक के एग्जांपल याद रखना, अर्गस, ओटोबियस और ऑर्निथोडोरस। और सॉफ्ट और हार्ड टिक में डिफरेंस क्या है? मेनली स्कूटम और फेस्टून जरूर याद रखना। पेडिपल तो याद ही आ जाएगा, वो सॉफ्ट और हार्ड टिक। फिर हार्ड टिक में आते हैं वन हॉर्स टिक,
2 host tick and 3 host tick। तो 1 host tick का एग्जांपल है बुफिलस, डर्मा सेंटर, अपोनेमा और मार्गोपस। अब 1 होस्ट टिक है तो इसका मतलब कि इसमें जो ट्रांसमिशन होगा वो होगा ट्रांस ओवेरियन ओवेरियन ट्रांसमिशन। 2 होस्ट का एग्जांपल है रिपिसिपेलस, 2 होस्ट का एग्जांपल है रिपिसिपेलस और हाइलोमा। रिपिसिपेलस, रिपिसिपेलस और हाइलोमा। और जो जितने बचे वो सब 3 होस्ट टिक के एग्जांपल है, वो नहीं लिखाऊंगा मैं। 1 होस्ट बुफिलस, डर्मा सेंटर, अपोनिया, मार्गोपस है। 2 होस्ट में रिपिसिपेलस, हाइलोमा और जो जितने भी बच गए, जो भी बच गए अपने सिलेबस में जो भी इसके अलावा बच गए वो सब है 3 होस्टिक। तो 3 होस्टिक में जो ट्रांसमिशन होगा वो ट्रांसस्टेडियल होगा, ट्रांसस्टेडियल ट्रांसमिशन। इसको 2 होस्ट टिक और 3 होस्ट टिक क्यों बोलते हैं? जैसे मैं पहले 2 होस्ट बताता हूँ। जैसे ओवी पोजीशन हुआ, जैसे सपोज जैसे ओवी पोजीशन हुआ, फिर उसके बाद जो उससे लार्वा निकलेगा ना टिक का, जिसको अपन सीड टिक बोलते हैं, लार्वा ऑफ टिक इज नोन एज सीड टिक, वो जाएगा होस्ट के ऊपर, चढ़ जाएगा होस्ट में जाएगा, उसको फीड करेगा। टिक तो हमेशा होस्ट पे नहीं रहते, वो बस केवल होस्ट पे उनका एक ही काम होता है, वो होता है फीडिंग का। जैसे उनको ब्लड मिल गया, उनका पेट भर गया, वो नीचे आ जाएंगे। होस्ट पे गया, उसने फीड किया, फीडिंग के बाद उसमें मोल्टिंग होगी, तो मोल्ट होके वो होस्ट निम्फ बनेगा, फिर इमेगो, फिर अडल्ट, फिर फिर जो फीमेल है, फिर जो फीड की है वो फिर से नीचे आ जाएगी, फिर उसको शेल्टर चाहिए फिर से एग ले करने के लिए, मतलब होस्ट पे जाएगा वो फीड करने, फिर नीचे आएगा और फिर शेल्टर ढूंढेगा, फिर एग ले करेगा, फिर ये चलेगा। ये है 2 होस्टिक। और 1 होस्टिक में तो होस्ट ही नहीं चाहिए, मतलब 1 होस्टिक में उसका ट्रांसमिशन ही ट्रांसओवेरियन है। और 3 होस्टिक में क्या होगा कि मतलब लार्वा जाएगा, फिर मोल्ट होके निम्फ बनेगा, फिर गिरेगा, फिर होस्ट पे जाएगा और फिर होस्ट से फिर गिर जाएगा। होस्ट से क्या है कि जैसे यहाँ पे जो अडल्ट नीचे आ रहा है ना होस्ट से उतर के, लेकिन 3 होस्ट टिक में क्या है, ये जो इसका लार्वा है ना वो नीचे आ जाएगा उतर के, फिर वो लार्वा फिर दूसरे होस्ट में चला जाएगा, सेकंड होस्ट में चला जाएगा वो लार्वा, फिर वहां जाके फिर फीड करेगा और फिर अडल्ट बनेगा। तो यहाँ पे एक ही होस्ट है और यहाँ पे दो दो होस्ट हो गए। 3 होस्ट टिक में ऐसा होता है, 2 होस्ट टिक में ऐसा, और 1 होस्ट टिक में होगा ट्रांसओवेरियन ट्रांसमिशन, और 3 होस्ट टिक में ट्रांसस्टेडियल। दूसरा इसमें एक टर्म है वो है ब्रेवियो स्टेरेट। ब्रेवियो स्टेरेट का मतलब होता है कि शॉर्ट माउथ पार्ट, और दूसरा है लॉन्गियो स्टेरेट, जिसका मतलब होता है लॉन्ग माउथ पार्ट। और इंसेक्ट्स में 3 पेयर ऑफ लेग होते हैं, टिक्स और माइट्स में 4 पेयर होते हैं। लेकिन टिक के जो लार्वा होता है, लार्वा ऑफ टिक, टिक लार्वा में जो होते हैं वो 3 पेयर ऑफ लेग होते हैं।
अब इसमें कुछ स्पीसीज है, उसके कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है थोड़ा, उसमें हार्ड और सॉफ्ट टिक में तो डिफरेंस हो ही गया। एक चीज और याद रखना है इसमें, बस ऑर्नेट याद कर लो, जो बचे वो सब इनऑर्नेट है। जैसे ऑर्नेट के एग्जांपल में डर्मा सेंटर है और एम्बाइलोम एम्बाइलोम। तो इन दोनों को छोड़ के जो भी हैं वो सब इनऑर्नेट हो गए। फिर स्पीसीज में जो आता है वो है पहले एक्सोडिस रिसिनस, which is also known as a castor bean tick, कैस्टर बीन टिक और शीप टिक। फिर है बूफिलस। तो बूफिलस कैसा होगा, वही इनऑर्नेट होगा, क्योंकि ऑर्नेट तो केवल है ही दोनों, तो इन दोनों के अलावा जो है वो इनऑर्नेट। तो बूफिलस में आता है बूफिलस एनुलेटा, which is known as a North American tick. The second one is Boophilus microplus, which is known as a tropical cattle tick. The third one is अपोनेमा, ये थोड़ा अलग सा है इसलिए इसको याद रखना, इट इज नोन एज अ रेप्टाइल टिक। फिर मार्गोपस, मार्गोपस इज नोन एज अ बेड लेग टिक। फिर अनदर इज हाइलोमा, हाइलोमा इज नोन एज अ बॉन्ट लेग टिक। फिर है रिपीसिफेलस, इसको इनऑर्नेट के लिए भी याद रख सकते हो कि बूफिलस हाइलोमा और रिपीसिफेलस, बीएचआर जो होते हैं वो इनऑर्नेट होते हैं, बूफिलस हाइलोमा और रिपीसिफेलस। फिर रिपीसिफेलस में आता है रिपीसिफेलस अपेंडिकुलेटस। Ripiciphallus appendiculatus is known as a brown ear tick, and Ripiciphallus sanguineus is known as a brown dog tick. First one is brown ear tick and second one is brown dog tick. So third one is Ripiciphallus evertsii. Ripiciphallus evertsii is known as a red leg tick. फिर another species is Haemophysalis. Haemophysalis is a yellow dog tick. इसमें याद रखना, ये जूनोसिस में भी पिछले बार क्वेश्चन आया था, खैर पब्लिक हेल्थ का क्वेश्चन बोल सकते हैं, लेकिन यहीं पे याद रखना कि हीमोफाइसिलिस क्या करता है, ट्रांसमिट काइशनूर फॉरेस्ट डिसीज एंड टॉलेरीमिया। फिर है डर्मा सेंटर, डर्मा सेंटर में डर्मा सेंटर निटेंस, which is known as a tropical horse tick. फिर है डर्मा सेंटर विरिबिलस, which is known as a American dog tick. फिर है एम्बाइलोमा, एम्बाइलोमा, एम्बाइलोमा is known as a lone star tick, also known as a bond tick. बाकी इसकी वैक्सीन मैंने पहले ही बताई थी, टिक कंट्रोल के लिए कौन सी है, बूफिलस माइक्रोप्लस के लिए। इसमें अपन BM86 एंटीजन यूज करते हैं, जनरल पैरासिटोलॉजी में बताया था। टिक गार्ड नाम था ना उसका, टिक गार्ड, उसमें अपन BM86 एंटीजन यूज करते हैं और BM91 भी यूज करते हैं। टिक गार्ड इज फॉर रिपिसिफेलस माइक्रोप्लस एंड हाइलोमा।
इसमें एक वो भी बताया था मैंने, एक्सप्रेशन सिस्टम फंगस यूज करते हैं, पिशिया फैक्टोरिस फंगस used as expression system. So this was all about veterinary entomology. तो इसको देख लेना, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन ही आते हैं जो आते हैं। और कल शायद मैं क्लास नहीं लूंगा, कल वो आयुषी वैद्य क्लास लेगी कल 7:30 बजे, 7 या 7:30 बजे उसकी एक इंट्रोडक्टरी क्लास होगी। तो वैसे पहली क्लास मैंने ली थी जब, तो आईसीआई से रिलेटेड चीजें तुम लोगों को बताई थी। जिन लोगों का छूट गया था और कुछ पूछना हो तो वो उससे पूछ सकते हैं, कल 7 बजे या 7:30 बजे वो इसी ग्रुप में टाइम डाल देगी। उसने अलग नाम से नहीं ज्वाइन किया है, क्योंकि इस टीचमेंट ऐप में इनकी टीचर ऐड हो सकता है, तो उसने मेरे ही नंबर से लॉगिन कर लिया है, तो वो उसी ऐप में डाल देगी और टाइमिंग भी वो डाल देगी, तो तुम लोग उस टाइम पे ज्वाइन कर लेना। और कल शायद मैं क्लास नहीं लूंगा, अगर वो उसकी ज्यादा लेट हो गई तो, अगर नहीं हुई और 9 के पहले हो जाता है तो फिर 9 के बाद अपन फिर नेमाटोड्स पढ़ेंगे। थोड़ा पैरासिटा और बोरिंग सब्जेक्ट है, पर नेमाटोड्स बहुत बड़ा भी है। तो उसके बाद अपन नेमाटोड्स पढ़ेंगे, फिर नेमाटोड्स के बाद तो फिर मैं सर्जरी पढ़ाऊंगा, और वो शायद फार्माकोलॉजी पढ़ाएगी। और तुम लोग डिसाइड करके बता देना ग्रुप में कि पढ़ना कैसे, मतलब एक ही दिन दोनों से पढ़ना है, अल्टरनेटिव पढ़ना है? क्योंकि मेरे हिसाब से एक दिन पढ़ोगे तो ठीक है, क्योंकि एक महीने में कोर्स खत्म हो जाएगा, तो तुम लोग को भी पढ़ने का समय मिलेगा। नहीं तो ऐसे तो चलता ही रहेगा, और आईसीआर के एग्जाम के लिए समय है, पर तुम लोग को भी पढ़ने के लिए समय चाहिए ना। 2-3 घंटे रोज ऑनलाइन क्लास में देना ये थोड़ा ज्यादा हो जाता है ऐसे, क्योंकि 2 घंटे की क्लास में 1 घंटे तो ठीक रहता है, फिर 1 घंटे वो फालतू कहीं बोरिंग ही रहता है। तो उस ग्रुप में बता देना कि अल्टरनेट डे क्लास करना है कि दोनों के एक साथ, मतलब शाम को ही होगी क्लास तो। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। कल अगर क्लास जल्दी एंड हो जाती है उसकी तो फिर मैं नेमाटोड्स स्टार्ट कर दूंगा, नहीं होती है तो फिर अपन परसों से नेमाटोड्स पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू एंड। अगर किसी कोई क्वेरी और कुछ हो तो वो पूछ सकता है उसमें। और जिसने भी पैसे नहीं भेजे भैया, पैसे भेज दो तुम लोग। एक तो जो पैसे नहीं भेजे शायद वो ज्वाइन भी नहीं है अभी, पर जो भी हैं वो नहीं भेजे हैं वो भेज देना। ठीक है।